A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of Class 12 Business Studies. As you know very well, in the last few videos, we almost complete our business studies syllabus. And now we are coming to the revision part of Class 12 Business Studies. As you know very well, your whole business studies syllabus divided into the two parts, that is the part A and part B. In the part A, there are basically following chapters. The first one is the nature and significance of management. Number second, principle of management. Number three, business environment. Number four, planning. Number five, organizing. Number six, staffing. Number seven, directing. And number eight is a controlling. So part A में total 8 chapters include किए गए हैं, whereas in the part B there are basically 4 chapters. In this, in it, the first chapter of part B, that is a chapter number almost 9 or 10. Okay, so chapter number 9 is a financial management. Number 10, financial market. Number 11, marketing management. Or number 12 is a consumer protection, that is a consumer protection act. So in today's video, first of all we discuss the first chapter of part A, that is the nature and significance of management. So you know very well, पहले तो ये समझाना जरूरी है कि हम कैसे रिवाइज करते हैं. Before the revision of any topic, it is the responsibility of every student to revise all the concept which you studied in the earlier classes. यानी आपने पहले जो भी पढ़ा है उसको पहले आप पढ़ के आइए, फिर उसके बाद इस वीडियो और इस क्लास को अटेंड करिए. सो यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको फिर से रिमेंबर होंगी, और जब कोई चीजें बार बार रिमेंबराइज होती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको लर्न हो जाती हैं, आपका उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो पहले से बेटर हो जाता है. तो ये जो पूरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट. What is management? What are the nature of management? What are the significance of management? And what are the function of the management? What are the importance of the management? What are the objective of management? So ये पूरा जो चैप्टर है सिर्फ मैनेजमेंट 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 करता है, और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट इज योर फर्स्ट चैप्टर. अगर ये चैप्टर नहीं आया तो पूरा पार्ट ए आपके ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि द पार्ट ए इज टोटली बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट. इसमें मैनेजमेंट के फंक्शन आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसमें मैनेजमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है. यू नो वेरी वेल, देयर बेसिकली टू प्रिंसिपल गिवन बाय द reputed person, that is the principle of management. Scientific techniques, scientific management given by the F.W. Taylor, and principle of management, basic principle of management is the 14th principle of management already given by the Henry Fayol. So one by one we discussed all the topics, all the important terms related to the first chapter, that is nature and significance of management. So the first topic of this chapter is what is management. Most of the student confused about the management, and you know very well what is management. Management means to manage anything, means किसी काम को मैनेज करना is called a management. But management is a process, so include the following steps, following terms in. जैसे हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारे काम को मैनेज करता हूँ. जिसमें प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग एंड होता है, एंड कंट्रोलिंग होता है. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी आइडियल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, जब हम मैनेजमेंट की एक आइडियल डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर the first and very popular definition of management is management is a process of planning. Management is a process of planning, organizing, staffing, directing, and
कंट्रोलिंग, यानी बेसिकली मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल planning, organizing, staffing, directing and controlling the organization operation, the organization operation, यानी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज effectively and efficiently, effectively and efficiently. So basically अगर हम मैनेजमेंट में बात करते हैं तो टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. ओके, एंड इसमें हम लोग कौन कौन से स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेप्स को इंक्लूड किया जाता है. सो दीज आर द मैनेजमेंट, द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, सो दे आर बेसिकली टू कॉन्सेप्ट रिलेटेड ऑफ मैनेजमेंट. कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो दे आर बेसिकली टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट वन इज अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड सेकंड वन इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट. सपोज अगर आपकी बुक में ये टॉपिक नहीं दिया है तो ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है. अगर सिलेबस में भी नहीं है सो प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट कि ये सिलेबस में नहीं है सर, ये नहीं है. तो उन सारी चीजों को नहीं, आपको बेसिकली मैनेजमेंट के बारे में अगर डिटेल में डिस्कस करना है तो आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा. कॉन्सेप्ट ये बताता है कि मैनेजमेंट पहले क्या था और अब उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, लोगों को लेकर उसके प्रति क्या धारणाएं हैं, क्या उसके बारे में लोगों की सोच है. सो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो दे आर बेसिकली टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट वन इज अ ट्रेडिशनल एंड सेकंड वन इज अ मॉडर्न. If you are talking about the first concept of management, that is traditional concept, so it says that it is an art, it is an art, एक आर्ट है of getting things, of getting things done by या done through others, यानी कि दूसरों से काम करवाना, दूसरों से काम करवाना, और इट इज एन आर्ट. तो गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. हिंदी में अगर प्योरली कहें तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है जिससे हम दूसरों से क्या कराते हैं? काम कराते हैं. यानी दूसरों से हम प्रोडक्शन लेते हैं, दूसरों से हम सर्विस लेते हैं. यू कैन सी दैट मैनेजमेंट ट्रेडिशनल में लोग यही समझते थे मैनेजमेंट मतलब दूसरों से काम कराना है, तो हम कैसे करा सकते हैं. आप जानते हैं मैनेजर्स का रोल क्या होता है. मैनेजर्स यही क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं. लेकिन अब मैनेजमेंट का जो रोल है वो सिर्फ यहीं तक नहीं है कि दूसरों से हमें काम कराना है. यानी मैनेजमेंट इज नॉट अप टू द आर्ट गेटिंग थिंग्स डन थ्रू दन अदर्स, मतलब दूसरों से सिर्फ काम कराना. नो, अगर हम आज की बात करें तो मैनेजमेंट का रोल थोड़ा सा चेंज हो गया. यहां अब क्या हो गया है? प्रोसेस ऑफ, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. यानी अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो कहता है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम काम को कंप्लीट करते हैं और हमारा एम ये होता है कि हम अपने गोल को अचीव करें प्रॉपर इन टाइम में एंड मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यू नो वेरी वेल इफेक्टिवली और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, और उसको बेसिकली हम लोगों ने मेन क्लासेस में बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस भी किया था. Okay, so what is the management? Management is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling the
the organization operation and activities effectively and efficiently. If we are talking about the concept of management, there are basically two concepts of management, that is traditional and modern. In the traditional concept, management is an art of getting things done through others, and according to the modern concept, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals efficiently and effectively. So यहाँ आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर व्हाट इज इफेक्टिवली एंड व्हाट इज एफिशिएंटली, तो उसके लिए भी एक शॉर्ट में आप समझ लो क्या होता है व्हाट इज इफेक्टिवली एंड व्हाट इज एफिशिएंसी. That is effectiveness versus efficiency. Effectiveness and efficiently. Okay, so if we are talking about the, यहाँ वर्सेस लगा दो, दोनों में आप डिफरेंशिएट जानना बहुत जरूरी है. इफेक्टिवनेस वर्सेस efficiently या efficiency. Okay, so अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिवनेस, सो इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है, इफेक्टिवनेस मींस अचीव गोल्स विद इन टाइम. अचीव गोल्स विद इन टाइम. अगर आप टाइम के अंदर किसी काम को पूरा कर लेते हैं तो इट इज नोन एज द इफेक्टिवनेस. ओके, अगर हम बात करें इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी मींस कि आपने गोल को तो अचीव कर लिया टाइम में, बट यहां पर मेन फोकस किस पे होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑफ रिसोर्सेज. ओके, सो अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी, तो इफेक्टिवनेस का मतलब कोई काम इफेक्टिव कब होगा? जब आप गोल टाइम में कंप्लीट कर लोगे, कह दो ये इफेक्टिव है. इफिशिएंट कब होगा? इफिशिएंट मतलब आप बचत करो. इफिशिएंट जैसे मैं कहता हूं यू आर द इफिशिएंट, तो इसका मतलब आप कम टाइम में कम मेहनत पे ज्यादा क्या कर रहे हो? गोल अचीव कर ले रहे हो. तो यही है इफिशियंसी, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जैसे कोई बाइक है जो कम पेट्रोल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही, तो वो टाइम पे तो कंप्लीट करेगी करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी याद रखिएगा. तो इफिशिएंट किसे कहते हैं? जो कम सोर्स में कम रिसोर्स को एक्सपेंस किए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है. जैसे हम अगर आपको एक एग्जांपल दें, सपोज आपका एक टारगेट है कि आपको 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है इन अ मंथ. ठीक, तो उसमें दो ही ऑप्शन हो सकते हैं. मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है. मिस्टर ए क्या करते हैं? एक महीने में 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, और मिस्टर बी जो है एक महीने में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, यानी मिस्टर ए ने 12,000 यूनिट प्रोड्यूस किया एक मंथ में, और मिस्टर बी ने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया. तो अगर हम बात करें तो बोथ आर द इफेक्टिव, दोनों इफेक्टिव हैं. मिस्टर ए भी इफेक्टिव है, मिस्टर बी भी, क्योंकि दोनों ने ही टाइम के अंदर गोल को अचीव कर लिया. लेकिन अब यहां पे दोनों में बेस्ट कौन होगा? जिसकी इफिशियंसी अच्छी होगी. तो वहां आपको केस में ये बताना पड़ेगा कि हु इज द इफेक्टिवनेस एंड हु इज इफेक्टिव, हु इज इफेक्टिव एंड हु इज एफिशिएंट. तो यहां पर बोथ आर द पर्सन इज इफेक्टिव, बट ये जरूरी नहीं कि बोथ द पर्सन आर एफिशिएंट, बिकॉज यहां दोनों में वही एफिशिएंट होगा जिसने मिनिमम रिसोर्सेस को क्या किया हो? एक्सपेंस किया हो, या रिसोर्सेस को यूज किया हो. सो ये आपको केस स्टडी में जनरली मिल सकता है कि 2 person 3 person आर देयर, और यू कैन चूज द एनी 1 2 person हु इज इफेक्टिव एंड हु इज एफिशिएंट. ओके, the next topic is feature of management. Feature of management is also known as the characteristics of the management. What is the characteristics of management? Characteristics मतलब जिससे हम किसी भी टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं.
जैसे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का जो सबसे पहला फीचर होता है वो होता है दैट इज अ मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब इसका पूरा फोकस किस पे होता है कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। बिकॉज यू कैन सी दैट द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था गेटिंग थिंग्स डन अदर्स, इट इज एन आर्ट गेटिंग थिंग्स डन अदर, मतलब काम को करना है किसी के थ्रू भी किया जाए, अदर्स के थ्रू, व्हिच इज अ मैनेजमेंट ट्रेडिशन। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या करता है? अचीविंग गोल विद टेकिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन द प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस है उसमें इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और एफिशिएंसी भी होना चाहिए। सो हम अपने सबसे पहली चीज क्या होती है? गोल ओरिएंटेड, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। तभी तो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम लोग क्या दिखाए? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज you know very well ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द एंड रिजल्ट टू बी अचीव थ्रू ऑपरेशन, यानी हम अपने काम से क्या अचीव करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव या गोल का मतलब क्या होता है कि हम आज हम यहाँ खड़े हैं तो हम किस लिए खड़े हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है विद इन अ टाइम हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर लें और उसको प्रॉपर रिवाइज कर दें। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। उसके लिए हमने मैनेजमेंट किया, प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइज मतलब रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, फिर स्टाफ किया, जो प्रॉपर टीचर्स थे जिनको कॉमर्स के बारे में नॉलेज होगा स्कूल ने उसको स्टाफ किया, फिर डायरेक्टिंग हुआ, फिर कंट्रोलिंग मतलब अगर टाइम कंप्लीट में नहीं हो रहा है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिले या उनको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिले जिससे वो अपने काम को इजिली कंप्लीट कर सके। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है वो होता है गोल, ऑब्जेक्टिव। विदाउट ऑब्जेक्टिव यू कैन नॉट मैनेज ऑल द थिंग्स। आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है तो आप प्लानिंग कैसे करो? इज दैट क्लियर? जब तक आपके पास अपना गोल नहीं होगा तब तक आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। नंबर सेकेंड इज pervasive. You know very well management is a pervasive. What is the meaning of pervasive? मैंने बताया था just like a god. pervasive, yes, PERVASIV, pervasive मतलब everywhere. So we are talking about the second feature of management, that is management is pervasive. Pervasive means everywhere, यानी कोई भी ऐसी चीज जो हर जगह अप्लाई होती है। मैंने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि यू नो वेरी वेल अगर आप अपने घर में देखो चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे देखो हर जगह मैनेजमेंट, इट मींस मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। दैट इज चाहे वो आप अपना बिजनेस एक्टिविटी देखो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस और मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एनपीओज हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह मैनेजमेंट चाहिए। एज वेल एज आपको अपने घर के लिए भी क्या चाहिए, अपने फैमिली फंक्शंस के लिए भी आपको क्या चाहिए? मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है फैमिली फंक्शंस के लिए। So it means management is pervasive because it is applied in each and every areas, whether it is related to business or not, whether it is related to the personal activities or non-personal activities. Everywhere is, जैसे भगवान हर जगह मौजूद है वैसे मैनेजमेंट का भी एप्लीकेशन हर जगह मौजूद होता है। The third, the third feature of management is multi-dimensional. Management is multi-dimension. मीन्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द थ्री इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में तीन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल बिकॉज मैनेजमेंट इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इट इंक्लूड्स द फर्स्ट वन मैनेजमेंट ऑफ वर्क, नंबर सेकेंड मैनेजमेंट ऑफ people, and number third management of operations. Okay, number third management of operation, याद रखिएगा ये चीज। if we are talking about the multi-dimensional, so you know very well we are talking about the multi-dimensional। तो आप इसमें वर्क को भी मैनेज करते हो, पीपल्स को भी मैनेज करते हो, ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हो। वर्क को कैसे मैनेज करते हो? वर्क को मैनेज करने के लिए यू नो वेरी वेल आप मैन्युफैक्चर एरियाज में टास्क एनालाइज करते हो,
मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इन अ फैक्ट्री, ट्रीटिंग अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, पीपल की बात करें तो आप इसमें डील करते हो विद द एम्प्लॉइज लाइक ए स्टाफिंग। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, सो इट इज referred to all the three types of the activities. So one by one, please listen carefully. Management of work, it is concerned with the performance of various activities, tasks in an organization. And management of people means it refers to the management of human resource which are the most important assets for an organization. So you know very well management का एक function होता है staffing which are related to the management of people. और मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे मैनेज करते हैं? थ्रू द प्लानिंग, थ्रू द ऑर्गेनाइजिंग, और प्लानिंग करके ऑर्गेनाइजिंग करके। और ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करते हैं? थ्रू द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो हम काम करते हैं उसको हम डायरेक्ट करते हैं थ्रू द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या है? कम्युनिकेशन के थ्रू, मोटिवेशंस के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू, सुपरविजन के थ्रू हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। और कंट्रोल भी करते हैं। अगर हमारा काम टाइमली नहीं कंप्लीट हो रहा है तो हम उसकी कंडीशन में कंट्रोलिंग भी स्टैब्लिश करते हैं। सो अगर हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करें तो थ्रू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वी मैनेज द वर्क। पीपल को कैसे मैनेज करते हैं? थ्रू स्टाफिंग। और ऑपरेशन को कैसे मैनेज करते हैं? थ्रू डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि डायरेक्टिंग सिर्फ ऑपरेशन को ही मैनेज करता है। नो, इट इज ऑल्सो मैनेज द पीपल ऑल्सो। ठीक है, तो सब इंटर रिलेटेड है। सो मैंने आपको एक सेपरेटली क्लासिफिकेशन बता दिया कि दिस विल बी मैनेज बाय दिस। नंबर फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक सतत प्रक्रिया, हिंदी में हम लोग पढ़ते थे जब हम लोग क्लास में थे, छोटे बच्चे हम लोग भी थे, तो उस टाइम मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यू चलता रहता है, इट नेवर एंड, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग साइकिल। यू नो वेरी वेल, जैसे बिजनेस चलता रहता है, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, फिर पैसा आता है, फिर उस पैसे से हम लोग रिजर्व बनाते हैं, फिर जितना पैसा बचता है उससे हम लोग फिर रॉ मटेरियल लाते हैं। तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। वैसे मैनेजमेंट जो होती है वो कॉन्टिन्यू चलती रहती है। जैसे हमने किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर मैनेजमेंट किया, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है तुरंत हमारा ऑब्जेक्टिव दूसरा आ जाता है। और इकोनॉमिक्स में तो आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, बट उसको फुलफिल करने के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो ऐसा नहीं है कि आपके वांट्स खत्म हो जाएंगे, वांट्स तो अनलिमिटेड है। तो एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ तो आपने तुरंत दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या कर लिया? बॉर्न कर लिया, उसको पैदा कर दिया, फिर तुरंत आपने दूसरे ऑब्जेक्टिव पे वर्क करने लगा। अब आप 12th पढ़ लोगे, 12th पास करने के बाद क्या आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा? नहीं सर, 12th तक के लिए हमने मैनेजमेंट किया है, फिर उसके बाद हम सब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उसके लिए मैनेजमेंट करेंगे, फिर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे उसके लिए, फिर आप बड़े हो जाएंगे तो अपनी फैमिली की चीजों को मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एज वेल इट इज कॉन्टिन्यूड। ये हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। इट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक लोग का काम नहीं होता है, ये भी याद रखना। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये तो इजली वर्ड है। एंड इट इज अ डायनेमिक, because you know very well future is uncertain. So management is dynamic because organization affects by its internal environment as well as its external environment. जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है। तो यू नो वेरी फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो आपके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट्स हैं, वो भी अनसर्टेन है। तो जब वो सारी चीजें अनसर्टेन है तो आपका मैनेजमेंट भी डायनेमिक होना चाहिए, डायनेमिक इन नेचर होता है, वो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा आपके लिए थ्रेट्स और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता रहता है। एज वेल एज इट इज इंटेंजिबल, ए बी सी डी ई एफ जी एंड लास्ट इज अ इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज अ intangible. Why? Because we cannot see, touch or the management. ठीक, like orderliness, discipline, happy, satisfied employees, all the things are intangible, we cannot see or touch of the management. So these are the features of the management. I hope it is clear for you. Of the next topic is objective of management. So the you know very well objective is the purpose of management. हम management क्यों करते हैं? So you know very well
द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज। जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, second one is a social objective, and third one is a personal objective. You know very well, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन बेसिस से अलग है, सोसाइटी के लिए अलग है और पर्सनल बेसिस में अलग है। यानी अगर हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अगर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करता है, लिसन केयरफुली, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, तो वो किस लिए मैनेजमेंट करता है? इट्स बेसिक पर्पज इज फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, सॉरी सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। भैया वो मैनेजमेंट इसीलिए करता है कि वो मार्केट में सरवाइव कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके और ग्रो कर सके। ठीक। नंबर सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर सोशल ऑब्जेक्टिव पे अगर हम लोग ध्यान दें तो दीज ऑब्जेक्टिव डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द सोसाइटी। याद रखिएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का? डील विद द कमिटमेंट of an organization with the या towards the society, यानी सोसाइटी के प्रति ऑर्गेनाइजेशन का क्या कमिटमेंट है, इट विल शो द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो उसका मेन जो होता है वो होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो उसका कुछ सोसाइटी के प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ देने के लिए वो अपनी कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव पे भी मैनेज करता है। इसमें क्या क्या आता है? यू नो वेरी वेल, ये मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया था कि सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है मैनेजमेंट का जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, इट इंक्लूड्स द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। रीजनेबल प्राइस, प्रोडक्ट का जो प्राइस है रीजनेबल होना चाहिए। और ऐसा नहीं मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही है, आप यू कैन ओपन द बुक। अगर आप बुक ओपन करोगे तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एग्जांपल व्हिच इंक्लूड्स द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यानी ऑब्जेक्टिव का जो सोशल एस्पेक्ट है वो क्या है, वो इस बात को शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना सोसाइटी के प्रति क्या कमिटमेंट है। उसकी कमिटमेंट है कि वो प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का सोसाइटी को दे, रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट भी और प्रोडक्शन का नेचर भी इको फ्रेंडली हो, यानी इससे इन्वायरमेंट पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ये हमारे बिजनेस की कुछ बेसिक चीजें हैं। एज वेल एज अगर हम बताएं तो पूरी लिस्ट बन जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और आएगा आपको टाइमली पेमेंट करे। किसको पेमेंट करें? एम्प्लॉयज को, क्योंकि एम्प्लॉय इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। यू नो वेरी वेल, जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? सोसाइटी के। तो उनका एक सोसाइटी के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइमली वेजेस एंड सैलरी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करे, टाइमली पेमेंट करे। सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ वेरियस term include the social objective of management. If we are talking about the personal objective of management, सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ जो बात करते हैं वहां पर्सनल नीड्स की बात करते हैं, क्योंकि सोसाइटी तो पूरे ग्रुप ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करता है, जैसे अपनी सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, क्योंकि जब तक वो अपने मेन बेसिक को कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो वो सोसाइटी की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, और सोसाइटी का जब नीड फुलफिल होता है तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिक पर्सनल नीड्स भी ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाते हैं। तो पर्सनल नीड्स में हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव, जैसे कि हम बात करें पर्सनल नीड्स की, तो दीज ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड विद सेटिस्फाइंग द पर्सनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, दैट इज satisfied with the satisfied fied person to person by fulfilling their individual needs। यानी अगर हम पर्सनल नीड्स की बात करें,
सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस किस तरह से पर्सनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकता है मैनेजमेंट के थ्रू, तो वो सेटिस्फाई कर सकता है पर्सन टू पर्सन उनकी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करके। जैसे कि उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करे। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब क्या होता है, जैसा दूसरे बिजनेस में सैलरी मिल रही है लोगों को, जैसे अगर आप किसी मिस्टर एक्स कंपनी में काम करते हैं और आप ही का फ्रेंड, आप ही के रिलेटिव मिस्टर वाई कंपनी में काम करते हैं सेम रैंक पे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि जो मिस्टर वाई को सैलरी मिल रही है वही मिस्टर वाई कंपनी के एम्प्लॉइज को जो सैलरी मिल रही है उस पोस्ट पे वही सैलरी आपको ही मिले। जैसे आई एम द पीजीटी कॉमर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल, तो आई वांट टू गेट द रेम्युनरेशन फ्रॉम द एपीएस equivalent to the other teachers which are posted as a PGT commerce in the other school. So this will be known as the competitive salary. ओके, याद रखिएगा कॉम्पिटेटिव सैलरी मतलब सेम पोस्ट पे सेम टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में उस काम का क्या सैलरी है। ठीक है। नंबर सेकंड, कॉम्पिटेटिव सैलरी के बाद आती है आपकी सोशल नीड मींस पीयर रिकॉग्नाइजेशन। आपको प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन मिले। रिकॉग्नाइजेशन मतलब जानते हैं, पहचान मिले, लोग आपकी अच्छे काम की तारीफ करें। और लाइक अ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपके डेवलपमेंट की बात हो, यानी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए। आपको ट्रेनिंग देने के साथ साथ ये रिकॉर्डिंग डेवलपमेंट मतलब आपको ट्रेनिंग देने के साथ साथ आपका नेचर बिल्डअप किया जाए, आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा जाए। So these are the three objective of management. So I hope in today's class we complete the few important theoretical points related to the chapter number 1, that is what is management, what are the features of the management, and what are the basic difference between the efficiency and effectiveness, and we discuss the objective of management. Okay, so आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।